Hello students. In the previous classes, we had studied about the different life processes such as the nutrition, respiration, circulation and excretion. Now, in this part, we will study how do the organism reproduce and what are the significance of the reproduction. As we know that the special feature of living organism is to reproduce. So why it is the important? As we know that by the reproduction, a organism produce many copy like themselves. So it help into the maintaining of life or continuity of life. So in this part we will study how the organism reproduce and what type of the reproduction like as the sexual reproduction and asexual reproduction, and also we'll discuss reproduction in plants as well as in animals. Learning outcomes. At the end of this chapter you will be able to discuss the importance of the reproduction for the continuity of generation and define variation and importance of the variation. Also understand the different mode of the asexual reproduction such as binary fission, fragmentation, multiple fission, budding and regeneration, etc. Understand the sexual reproduction in plants and the name different parts of the flower and their function. Also define the pollination and fertilization in plants. Draw the male and female reproductive system. Name the different part of male and female reproductive system and their role. And also understand the importance of using birth control. So, what is the reproduction? Reproduction is a process by which all organisms multiply in number and increase their population. So, basic significance of the reproduction is to for the continuity of the generation, and as we know that by the reproduction organism multiply its number and increase their population. Reproduction are two types, asexual reproduction and sexual reproduction. First we will study what are the asexual reproduction. Asexual reproduction is a method of the reproduction that involves only one organism. A single organism reproduces two or multiple organisms on its own. This is seen in all unicellular organisms, some multicellular organisms, and few plants. So basically asexuअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें सिर्फ एक प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है एंड सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, और सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट कॉपी. जैसे कि प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है लीफ के थ्रू, स्टेम के थ्रू. जैसे रोज की कटिंग होती है वो उसमें क्या उस नया प्लांट कैसे बनता है, अगर हम स्टेम को काट के कहीं दूसरे प्लेस पे लगाएं तो एक नया प्लांट बनता है. तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए. एंड सेकंड इज सेक्सुअल reproduction. And in the sexual reproduction, the mode of the reproduction that involves the two individuals, one male and one female, they produce sex cell or gametes which fuse to form a new organism. जबकि sexual reproduction में क्या है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल एंड अनदर इज फीमेल, एंड द मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट and female produce the female gamete, and by the fusion they form the new organism. So basic difference asexual और sexual reproduction में ये है कि asexual में single organism involve होता है, जबकि sexual reproduction में two individual involve होते हैं. Do organism
create exact copy of themselves? What do you think? By the reproduction, do organism create exact copy of themselves? No, there is some slightly variation. As we know that at the time of the formation of the gamete, meiosis occur. Okay, eventually this creates the DNA different from the parent due to the crossing over and the recombination, as the change in the information of the DNA imply in the initiation of the variation. Altered DNA copy will code for the protein different from the original one. Different protein lead to the variation in the organism. So जैसे हमने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में पढ़ा है मियोसिस और माइटोसिस के बारे में, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम मियोसिस होती है. मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम होती है. जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक नया रिकॉम्बिनेशन बनता है, तो डीएनए में थोड़ा स्लाइटली चेंज हो जाता है. तो ये जो स्लाइटली चेंज होता है ये क्या करता है, वेरिएशन कॉज करता है. द वेरिएशन माइट बी ड्रास्टिक और द स्लो. वेरिएशन क्या हो सकती है, ड्रास्टिक भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है. और वेरिएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? इन शॉर्ट, वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस morphological, physiological, behavioristic and cytological amongst the individual of the same species and offspring of the same parent. तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन मेनली क्या है, डिफरेंस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, फिजियोलॉजी पे और बिहेव और साइटोलॉजिकल बेस पे. इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल में डिफरेंस और ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट. तो वेरिएशन मेनली क्या है, ये डिफरेंसेस है इन केस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल. In an asexually reproducing organism, variation is limited. Organism create exact copy of themselves, that is a clone, but the chance of the variation are very high in the sexually reproducing organism. So asexual reproducing organism होते हैं, उनमें वेरिएशन लिमिटेड होती है. वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, माइटोसिस होती है, और माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है. तो इस कारण से क्या होगा, एग्जैक्ट जो पेरेंट है वैसी कॉपी वो नेक्स्ट कॉपी बनाएगा, या बोल सकते हैं हम क्लोन बनाता है. बट इन द चांसेस ऑफ द वेरिएशन आर वेरी हाई इन द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. बट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें वेरिएशन का चांस हाई रहता है. वो क्यों रहता है? क्योंकि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस में हमें पता है कि क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसके कारण से क्या होगा, एक नया कैरेक्टर थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है पेरेंट से इंडिविजुअल. सो व्हाई द variation is important for us? First is the variation in the species help them to adapt themselves to that particular environment and give them to chance of survival. तो वेरिएशन क्या करता है, बेसिकली जो स्पीशीज को क्या करता है, उसमें थोड़ा चेंज लाता है. चेंज क्यों लाता है? ताकि वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट कर सके और सर्वाइव कर सके. जैसे कि एनवायरनमेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को वेरिएशन, अपने आप में वेरिएशन लाता है, सो दैट वो क्या सर्वाइव हो सके उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में. सेकेंड इम्पोर्टेंस इज it also help organism to adapt their environment as well as the to change which do occur in the environment. तो ये क्या करता है, अपने आप को, ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करता है, सो दैट ये उस एनवायरनमेंट में अपने आप को इजीली उसमें सर्वाइव कर सके. इट हेल्प a species to emerge the strong if favored by the natural selection. The importance of variation can be understood by the example, by this example. For example, thermophilic bacteria. Thermophilic means which grow in the high temperature, are variant that are the resistant to the extreme temperature.
they have the chance of the survival in the high temperature zone while other die. तो ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं? तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये अपने आप में इतनी वेरिएशन ला देते हैं कि जिससे क्या ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंट होंगे एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए तो क्या होगा, वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में, जबकि दूसरे बैक्टीरिया मर जाएंगे उस टेम्परेचर पे। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन इज मेनली फॉर द अडेप्टेशन एंड फॉर द सर्वाइवल इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट. Now, firstly, we will study asexual reproduction. As we know that it involves only one parent, there is the no formation and the fusion of the gametes. The young ones formed are almost identical to each other as well as the parent cell. Asexual reproduction generally occurs during the favorable environmental condition and when there is the abundance of food. It is a faster method of the reproduction. तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है और देयर इज नो फॉर्मेशन और द फ्यूजन ऑफ द गैमीट, मतलब इसमें गैमीट नहीं बनते हैं. एंड द यंग वंस फॉर्म्ड, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ईच अदर, सेम होते हैं और पेरेंट सेल की तरह बिल्कुल सेम होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली अकर ड्यूरिंग द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो और जब फूड अबंडेंस में हो. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, ये फास्टर मेथड है रिप्रोडक्शन का. टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन unicellular organism. First is the binary fission. This type of the fission occurs in the bacteria, protozoa like the amoeba, paramecium. In the first pseudopodia withdraw karyokinesis, the nucleus of the parent cell divide and then the cytoplasm divides, that is the cytokinesis, resulting in the formation of two daughter cells. It occurs during the highly favorable condition. The cell division can occur in any plane as in case of the amoeba. However, organisms like Leishmania that cause the Kala Azar, which have the whip-like flagella at the one end, binary fusion occur in the definite orientation in relation to flagellum. सो फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लाइक द अमीबा एंड पैरामीशियम. तो इसमें जैसे ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये अमीबा का किस तरह से अमीबा रिप्रोड्यूस करता है. इसमें जैसे फर्स्ट सेल है अमीबा, ये इरेगुलर शेप की होती है, तो किस तरह से नए सेल बनती है. तो इसमें बेसिकली टू टाइप्स का डिवीजन होगा. फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज द साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, while the cytokinesis means division of the cytoplasm. तो इसमें क्या होता है, एक अमीबा सेल है तो वो किस तरह से ग्रो, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद क्या होता है, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिवाइडिंग एंड साइटोप्लाज्म आल्सो स्टार्ट टू डिवाइडिंग. तो जब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है तो ये टू डॉटर सेल बन रही है जो कि एग्जैक्ट क्या है, सेम एज द पेरेंट. तो अमीबा में क्या होता है कि जो डिवीजन है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, जबकि लेशमेनिया सेकंड केस है, ये वाला लेशमेनिया है ऑर्गेनिज्म और ये क्या कॉज करता है, काला आजार डिजीज कॉज करता है. तो इसमें जो डिवीजन या न्यू इसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रिप्रोड्यूस होता है. बेसिकली लेशमेनिया में क्या होता है, इट हैव द whip-like flagella, जैसे ये जो
ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, फ्लैजिला एट द वन एंड, एक एंड पे इसका फ्लैजिला होता है। बाय द बाइनरी फिजन अकर इन द डेफिनेट ओरिएंटेशन, तो इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में डिवीजन हो रहा है, जैसे कि लॉन्जिट्यूडनल, इस तरह से आप देख सकते हो, एक डेफिनेट शेप में इसका डिवीजन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लैजिलम। तो इस तरह से बाइनरी फिजन के द्वारा जो सिंगल सेल है वो रिप्रोड्यूस करके एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ द asexual mean in the unicellular organism is multiple fission. This type of the fission seen in the plasmodium. Plasmodium, as we know that it is the malarial parasite causes the malaria. In this, during unfavorable condition, the parent cell develop the resistant wall around itself, forming the cyst. Within the wall, the cytoplasm divide many times to form the many plasmodia. When the condition become favorable, the cyst wall break and the plasmodium are released. So multiple fission में क्या होता है, इस टाइप का फिजन प्लाज्मोडियम में देखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है प्लाज्मोडियम क्या एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो क्या होता, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब एनवायरनमेंट फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता, तो जो एक पेरेंट सेल है ये क्या करता है, अपने चारों और सेल के अराउंड एक सेल वॉल एक सिस्ट की फॉर्म में फॉर्म करता है। तो जो इस सिस्ट वॉल के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करके बहुत सारे मल्टीपल प्लाज्मोडिया बनाता है, और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो डॉटर सेल आर रिलीज्ड इन द फेवरेबल कंडीशन। तो इस तरह से बहुत सारे प्लाज्मोडिया इसे एक पेरेंट से बनते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये वाला मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है। So, टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फर्स्ट इज बाय द फ्रेगमेंटेशन। द फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ द asexual reproduction seen in the multicellular organism which have the relatively simple body like the Spirogyra. Spirogyra एक क्या है, एक एल्गा है। Spirogyra has the filamentous body. If it breaks into the smaller piece of the fragments, each fragment has the capacity to form a new individual. However, all the multicellular organism can not show cell by cell division as the cell from the tissue which form the organ. These organs are placed at the definite position in the body, hence they need to use the more complex methods of the reproduction. So fragmentation उन ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है जिसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो, जैसे कि स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक एल्गी है। तो इसमें स्पाइरोगायरा की बॉडी कैसे होती है, फिलामेंटस बॉडी, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये सिंपल बॉडी फिलामेंटस टाइप में होती है। अगर ये प्लांट बॉडी किसी कारण से स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट जाए, तो जो ये जैसे मान लो कि ये 3 फ्रेगमेंट में टूटी, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, तो जो ये ईच फ्रेगमेंट है इनके पास क्या है, कैपेसिटी है कि ये रीग्रो करके क्या बना सकता है, फिर से पूरा ओरिजिनल इंडिविजुअल प्लांट बना सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होगा कि ईच फ्रेगमेंट हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। हाउएवर all the multicellular organism cannot show this cell to cell division as from the tissue which form the organ. So basically सारे जो multicellular organism वो fragmentation show नहीं करते हैं। There are the special in the maximum जो multicellular organism होते हैं उनके पास more complex method होता है for the reproduction. Special cells होते हैं जिसके through वो reproduction करते हैं। Second is the regeneration. It is the ability of the organism to develop their lost part. Some organisms show
have high regenerative capacity. It is also mean of the reproduction. For example, planaria. Regeneration is carried out by the specialized cell, which redivides to form the mass of the cell, from which cell undergo the change to become different cell types and tissue. These changes occur in the organized sequence known as the development. So regeneration क्या है? ये ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है थ्रू विच ऑर्गेनिज्म जो उसके लॉस्ट पार्ट है उसको फिर से डेवलप कर सकता है. जैसे कि इस टाइप का रीजनरेशन का एग्जांपल आप प्लेनेरिया में देख सकते हो. इसमें क्या होता है, प्लेनेरिया का अगर इसका कोई एक, जैसे यहाँ पे है कोई एक पार्ट लॉस्ट हो गया, तो ये क्या करता है, इट हैज द स्पेशलाइज सेल, इसके पास स्पेशल सेल होती है जो कि रीडिवाइड करके एक फॉर्म ऑफ द मास ऑफ द सेल बनाती है, जिससे जो क्या डिफरेंट सेल अंडरगो द चेंज एंड बिकम द डिफरेंट सेल टाइप, और वो सेल डिफरेंट टाइप के सेल टिश्यू बनाते हैं, जिससे कि जो लॉस्ट पार्ट है वो फिर से रीडिवाइड करके डेवलपमेंट करके ग्रो करके फिर से पूरा प्लांट या जो लॉस्ट पार्ट है वो पूरा पार्ट बना देता है. तो रीजेनरेशन में बेसिकली ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी होती है जो उसका ऑर्गन या पार्ट रिमूव हो गया है उसको फिर से ग्रो कर सकते हैं. Another type of the asexual reproduction is the budding. Budding is a type of the asexual reproduction in which the small cyst-like structure is formed on the parent body, which give rise to the new individual. Bud may remain attached to the parent in case of the yeast, or may separate and become the new individual in case of the hydra. So बेसिकली बर्डिंग में क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक स्मॉल, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, स्मॉल ये क्या है, सिस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, और जो ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू हाइड्रा बनाता है. तो बर्ड रिमेन अटैच टू द, इन केस ऑफ द ईस्ट जैसे आपको पता है ये फंगस का फंजाई है, तो इसमें क्या है, बर्ड रिमेन अटैच टू द पेरेंट. तो जो नया बर्ड है वो पेरेंट के साथ, बॉडी के साथ ही अटैच रहता है, लेकिन कुछ एक केस में ये सेपरेट हो जाता है, जैसे कि हाइड्रा के केस में ये बर्ड जो ये वाला पोर्शन है ये सेपरेट होकर के एक न्यू इंडिविजुअल बनाता है. तो इस तरह से बर्डिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो इसमें बेसिकली वन पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है. Another type of the asexual reproduction is the spore formation. Organism such as fungi make the spore that can grow into the complete new individual when dispersed from the fruiting body. This type of the spore formation seen in the rhizopus. Rhizopus is a fungus. Rhizopus body is made of the thread-like structure called hyphae. The erect hyphae were the sporangia, inside which reproductive structure called the spore are formed. Spore are asexually reproducing bodies having thick protective wall. They are produced during unfavorable time and helps to tide over the unfavorable environmental condition. When the spore fall on a stable medium, each one forms a new individual. So spore formation mainly जो फंगस है उसमें देखी जा सकती है, जैसे कि इस पिक्चर में स्पोर फॉर्मेशन दिखाई है इन केस ऑफ द राइजोपस. राइजोपस क्या है, एक फंगस है. इसमें क्या होता है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम हाइफी बोलते हैं. हाइफी क्या प्रोड्यूस करता है, जो ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं. स्पोर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है विद इन द स्पोरेंजियम. जो ये स्पोर रिप्रोड्यूस होते हैं ये एसेक्स बाय द मीन्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं. और जब ये स्पोर
फॉल सुटेबल मीडियम, जैसे ज़मीन पर गिरेंगे, जहाँ पर कि सुटेबल मीडियम होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं और ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू नया इंडिविजुअल बनता है, और ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। So let's recall what we have studied in this part. Firstly, we have studied about the reproduction, why the reproduction is so necessary, and different type of the reproduction, like as the asexual reproduction and sexual reproduction. In the asexual reproduction, we have studied about different type of methods such as the spore formation, fragmentation, regeneration, budding, etc. And we also studied about the variation, what are the variation and why the variation is so important for the life. In the next part, we will study about the sexual reproduction in case of the plant.